کراچی میں شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے بعد چھوٹی سی گزارش میڈیا کے لیے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی فوری طور پر میڈیا کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں. ہمارے کچھ صحافی حضرات وہ جلدی رپورٹنگ کرنی بھی ہے, بریکنگ بھی دینی ہے, اور پھر کون سا بندہ کیا بات کر رہا ہے. میں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ جی 10 دہشت گرد اندر موجود ہیں, اور میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا, اس میں کسی آفیسر کو بھی کوٹ کیا گیا, آپ اس نے کہا نہیں کہا وہ سب الگ بات ہے. 10 دہشت گرد تو جی اندر موجود ہے. اب وہ پولیس کی جو سویپنگ تھی, اب آدھے لوگوں نے کوئی سوچتا وہ ٹی وی دیکھ کر کوئی بھاگے ہو پہنچا ہو, اب وہاں پہ ہوگا جی کہ دہشت گرد کل 3 مارے گئے, 3 تھے, اب لوگ ان میں 7 آگے کون ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس میں میڈیا کو ہم پیمرا سے بھی گزارش کریں گے, میڈیا سے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر لوں کہ میں خود اس واقعے سے پہلے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد سے میں مل چکا ہوں, ان سے میں کچھ گزارشات کر چکا ہوں جی کہ اس طرح کے واقعات میں بریکنگ نیوز امپورٹنٹ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات میں خدا نخواستہ جب بھی پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں, جب بھی ہوں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ذمہ داری کس طرح مظاہرہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے پرابلم زیادہ بڑھ رہے ہوں. مطلب میں اس میں میڈیا کو کرٹیسائز بالکل نہیں کر رہا, قطعاً نہیں کر رہا, لیکن تھوڑا میڈیا نے بھی گورنمنٹ اور انتظامیہ کے ساتھ تھوڑا مشاورت کے ساتھ چلے تو وہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے نیچے ٹرانسفارم ہوں گی. تو اس میں پیمرا کو آلریڈی بھی ہماری شروع میں ایک میٹنگ ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز تھیں, اس میں کچھ سفارشات تھیں. تو اس کے تحت میں نے آلریڈی جس طرح پی بی اے سے میٹنگ کی تھی, ان کو کچھ ہم نے ریکویسٹیں کی تھی, ان میں ہم لوگ کافی تھینکفل ہیں کہ پی بی اے نے اچھا رسپانس دیا. بولا جی ہمارے جو بھی ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کے ذریعے ہم جو ہے کچھ چیزیں نیچے ٹرانسفارم کریں گے, چیزیں بہتری کی طرف جائیں, کیونکہ چیلنج سب کے لیے ہے. ان معصوم اموات کا جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا جتنا حکومت کو دکھ ہوا ہوگا اتنا میڈیا کو بھی ہوا ہوگا, اتنا ہیلتھ فیسلٹیز دینے والوں کو بھی ہوا ہوگا, اتنا پبلک کو بھی ہوا ہوگا. تو جب ہم سب کا مقصد ایک ہے تو اگر ہماری ڈائریکشن الگ ہونے سے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. اس میں ایک اور فیصلہ جو کیا گیا جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ خبر ہوگی, کہ حکومت نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے 1 ہفتے کا ہم ٹائم دے رہے ہیں تمام ان گاڑیوں کو جن پر اپلائیڈ فار رجسٹریشن کی پلیٹ لگی ہوئی ہے یا کسی قسم کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی ہے یا جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. ایکسائز منسٹر صاحب موجود ہیں, وزیر لا موجود ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد جو ٹائم دیا ہوا ہے, کوئی بھی گاڑی چاہے وہ کتنا ہی با اثر شخص کیوں نہ ہو, کتنا ہی با اثر بھی ہو, انفلوئنشل بھی ہو, کسی حکومتی محکمے میں بھی ہو یا کوئی عام بھی شخص ہے, گاڑی وہ کانفiscate کی جائے گی اور اس شخص کو پرابلم ہوگی جو بغیر نمبر پلیٹ کے اپلائیڈ فار رجسٹریشن گاڑی یا جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑی کوئی چلائے گا. ایک تو یہ. دوسرا, 1 ہفتے کا ٹائم دے رہی ہے سرکار تمام ان لوگوں کو جو اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, کیونکہ پولیس اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حکومت سندھ نے یہ پابند کر رہی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد یہ ساری سنیپ چیکنگ شروع ہوں گی. اگر آپ کے پاس آپ گاڑی کوئی چلا رہے ہیں جو آپ کے نام پر نہیں ہے اور آپ اوپن لیٹر پہ چلا رہے ہیں تو وہ گاڑی ضبط ہوگی. اگر وہ گاڑی اپلائیڈ فار رجسٹریشن کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تو وہ ضبط ہوگی. اگر وہ گاڑی کوئی پلیٹ نہیں لگی ہوئی تو ضبط ہوگی. اور یہ مہم باقاعدہ نان اسٹاپ شروع کی جا رہی ہے. اس میں کسی کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. ٹنٹڈ گلاس کی گاڑیاں جو ہوں گی اس کو بھی ضبط کیا جائے گا. کچھ لوگوں کو میڈیکل ریزنز کے لیے جنہوں نے پرمیشنیں لی ہوئی ہیں
हेल्थ सीजन के लिए वो अलग बात है, लेकिन जिनके पास परमिशन नहीं है वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा उसको। इस मद में एक और अहम फैसला जो कि ऑलरेडी कानून तो है लेकिन उस पर कभी ना गवर्नमेंट ने शायद इतना गौर नहीं किया, लेकिन वो चीज़ है, कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी कोई भी शोरूम वाला बेच नहीं सकता, जो सबसे अहम नुक्ता है। चाहे मैन्युफैक्चर शोरूम्स हो जो 0 मीटर गाड़ियां प्रोडक्शन करते हैं, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले रहा, या जो इंपोर्टर्स हो जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो शोरूम वाला कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी बेचेगा, एक तो वो गाड़ी जब्त होगी वैसे ही, लेकिन अगर उसमें कोई क्राइम होता है तो उस शोरूम के मालिक को उसमें इक्वली क्राइम में बराबर का जिम्मेदार समझा जाएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी, आप देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियां लोग शोरूम से खरीद गए, शोरूम पे गाड़ी इतनी कीमत अदा की, आप लेकर चले गए। पूरी दुनिया में यह कानून है। 1 हफ्ते का टाइम दिया उसके लिए भी, 1 हफ्ते के बाद किसी भी शख्स को अगर देखा गया कि वो उसकी गाड़ी के ढाले में या किसी पब्लिक प्लेस में कोई वेपन उसके हाथ में है, तो उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ फिर एफआईआर काटी जाएगी। तो ये भी बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया है। सिर्फ पुलिस, रेंजर्स या जो दूसरी फोर्सेस हैं, उनके गार्ड्स को इजाजत है, उनके गार्ड्स को भी तब इजाजत है अगर वो यूनिफॉर्म में रहें। बगैर यूनिफॉर्म पहने हुए किसी भी फोर्स के किसी शख्स को, या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उनको भी असले की नुमाइश का इख्तियार नहीं है। और इसमें हम ये कहते हैं कि जी अब इस मुहिम में हमें मीडिया की मदद की भी जरूरत है। जहां पे आप देखिए, आप निशानदेही करें, इसमें रियायत किसी के लिए नहीं है। वजीर आला साहब ने कहा कि जी इसमें अगर वजीर भी है, मुशीर भी है, कोई एमपीए भी है, किसी भी पार्टी का, हुकूमत का हो, अपोजिशन का हो, कोई एमएनए भी है, हुकूमत का हो, अपोजिशन का हो, कोई बासर रसूख आदमी है, कोई बगैर रसूख आदमी, जो भी वेपन की नुमाइश करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा। उस पर भी जीरो टॉलरेंस है। एक और चीज इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, जो कि आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ये चाहती है कि तमाम आवाम जो है, अगर आप देखते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में जहां आप रिहाइश पजीर हैं, जहां पे आप कारोबार कर रहे हैं, वहां पे या कहीं आपको गुजरते हुए कहीं पे कोई मशकूक एक्टिविटी होते हुए नजर आए, मशकूक सरगर्मी होते हुए नजर आए, और आप देख रहे हैं कि जी कहां पे जो है वो आपको शक हो, तो आप फौरी तौर पर 15 जो कि पुलिस का नंबर है, उस पर आप फौरी तौर पर इत्तला दें आवाम। 15 के निज़ाम को बहुत अच्छा, बेहतर उसको इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी उसमें बेहतरी आ रही है। तो उसमें गुजारिश ये है कि 15 के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जाए, और ताकि लोग जो है वो इत्तला दे सकें। जो भी आप किराए पे घर देते हैं, किराए पे दुकान देते हैं, किराए पे फिर गाड़ी भी देते हैं, रेंट कार भी दे रहे हैं, घर भी किराए पे दे रहे, कोई भी अपनी प्रेमिसेस, कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल अगर आप कोई किराए पे दे रहे हैं, तो बराए मेहरबानी करीबी थाने को आपने इंटीमेशन देनी है कि जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मेरी फलां प्रॉपर्टी है, ये मैं इस शख्स को दे रहा हूं, ये उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये उसकी शनाख्ती कार्ड कॉपी है, ये थाने में मैं इत्तला दे रहा हूं कि जी ये पहले भी 10 दफा चीजें सामने आ चुकी हैं। इसको ऊपर कानून भी मौजूद है, तो आइंदा के लिए भी ये लाजिम अमल है सब पे, मुझ पे भी, आप पर भी है। जो देख रहे हैं हमारे नाजरीन वो भी उनके सबके लिए ये लाजिम है। तो ये चंद गुजारिशात थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहुंच पाए, उसी तरीके से सबसे पहला जो जख्मी इस वाक़े में जो जख्मी हुआ सिविलियन साइड पर, वो हमारा
ईदी का मुआवन था, ईदी का एम्बुलेंस का रज़ाकार था, जिसको फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। हम नहीं चाहते कि किसी सिविलियन को इस तरीके से नुकसान पहुंचे। हम सब के अंदर वो जज्बा है कि आवाम की खिदमत की जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली वो काम करने की ज़रूरत है। जब पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले ऑपरेट कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, इस दौरान जब तक डीसी आपको इजाज़त नहीं देता, जब तक इंतज़ामिया आपको इजाज़त नहीं देती, आपको इस तरीके से इंटरवीन करना, उसके अंदर घुसना, आपकी अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, एंड एट द सेम टाइम ये जो रेस्क्यू 1112 की शर्जील साहब ने बात की थी, ये सरकारी सतह पर जो एम्बुलेंस सर्विस चल रही है फुली इक्विप्ड है। इसके अंदर तमाम वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो फुली ट्रेंड है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी होता है या कोई किसी को चोट पहुंचती है, तो ये जो एम्बुलेंस है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से उस हवाले से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। लेकिन होता यही है कि जब कार्रवाई स्टार्ट होती है तो तमाम लोग जज्बे के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभार जो एक्चुअल जिसका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है उसमें रुकावटें आ जाती हैं। तीसरी बात जो मीडिया के हवाले से कही थी, हम सब इजहार राय की आज़ादी में बिलीव करते हैं, हमारी सियासी जमात इस बात पर बिलीव करती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने की ज़रूरत है, जो कि जुमे को हमें फेस करना पड़ी। आप सब दोस्त जानते हैं कि टीवी पर शुरू में खबर चली कि 6 से 7 दहशतगर्द एंटर हुए हैं, और वो खबर ऐसी चली कि सब उसी चीज़ को चेक करने में लगे रहे। और जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, पुलिस ने ऑफिशियली ये बताया कि तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया है, तो कुछ टीवी चैनल्स पर ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि नहीं, वो तो 6 लोग बताए गए थे, 7 लोग बताए गए थे। इसी तरीके से दौरान ऑपरेशन ये बताया जा रहा था कि वो स्नाइपर आ गए हैं और फला बिल्डिंग पर मौजूद हैं, फला सपोर्ट के लिए फला स्पेशल स्क्वाड को बुला लिया गया है। तो वो जो दहशतगर्द साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, 3 कारिंदे तो अंदर आए हुए थे, लेकिन बहुत सारे कारिंदे उनको फ़ोन पर बता रहे होंगे, उनको इत्तला फराम कर रहे होंगे कि रियासत तुम्हारे खिलाफ इस तरह रिस्पॉन्ड करने वाली है, फला गली से आएगी, फला रास्ते से आएगी। तो अगर मीडिया उन तमाम चीज़ों को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला देता है, तो आवाम को आगाही से ज़्यादा कहीं कभी कभार ये चीज़ मिसयूज़ हो सकती है। तो इस पर भी गुजारिश ये है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, तो उसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। रिपोर्टिंग बिल्कुल की जाए, लेकिन ऐसे तरीके से बता देना चीज़ें जो कि बाद में आपको नुकसानदेह होती हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसमें हम आपका साथ चाहते हैं कि ताकि आपकी मदद से इन तमाम चीज़ों को कर सकें। तो वहाब और शर्जील मेमन मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मनाज़र आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सिंध हुकूमत के ताज़ा तरीन अहकामात के हवाले से आगाह किया जा रहा है। शर्जील मेमन का कहना था कि अब वज़ीर आला सिंध की जानिब से वाज़ेह इस बारे में अहकामात हैं कि असलहे की नुमाइश नहीं की जाएगी, जिस शख्स के हाथ में असला होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ साथ मुर्तज़ा वहाब भी अपडेट कर रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों जो कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ था, उस दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी। कंट्रीब्यूट भी करेंगे, और अगर फिर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो फिर कानून हरकत में आएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि हम तो चाहेंगे अतुल इम्कान के लोग खुद वॉलंटरीली इस चीज़ को ऑप्ट करें। ओपन लेटर पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जाली नंबर प्लेट्स पर चल रही होती हैं। मैं कल के जुमे के वाक़ये के हवाले से भी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज अगेन वो तफ्तीश का हिस्सा है अभी, लेकिन अगेन नंबर प्लेट का प्रॉब्लम है ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो टेनेंट्स के हवाले से कानून साजी हमने की, इसमें बड़ी कामयाबी हुई कि लोग अब जो किराएदार आते हैं उसकी मुताल्लिका थाने में रिपोर्ट कराई जाती है, लेकिन कहीं कहीं लोग रिपोर्ट नहीं कराते। तो मैं समझता हूँ कि जो शहरी हैं वो 15 की सर्विस को इस्तेमाल करें, और कभी भी वो कोई इस तरह की चीज़ देखें जो कि उनको सस्पिशियस लगती है, गैर मामूल लगती है, तो वो अपना किरदार अदा करें, 15 को इंटीमेट करें। उनकी आइडेंटिटी को पोशीदा रखा जाएगा, वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ, रियासत को इससे आगाही मिलेगी कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी हिफाजत पर वो लोग मामूर हो सके। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम चीज़ों को वायलेट ना करें, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, चीज़ों को फॉलो करने में
ایک رسپانسبل شہری کے طور پر اپنی حکومت کا اپنی ریاست کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. آپ نے بات کرنی؟ لیکن کراچی شہر میں یہ اطلاعات بھی ہے اور لوگ گرفتار بھی ہیں. کراچی شہر میں اسلحہ بھی کرائے پہ ملتا ہے اور ان وارداتوں کو اگر آپ پولیس آئی جی سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ گرفتار بھی ہیں جو کہ اسلحہ کرائے پہ لیتے ہیں اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کہاں سے اسلحہ کرائے پہ ملتا ہے. تو نمبر ایک. دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی والے ہیں ان کی گاڑیاں پولیس جیسی ہوتی ہیں اور ان کے بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوتا ہے. جب غور سے دیکھا جائے تو وہ پرائیویٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے. تو جو دہشت گرد پرائیویٹ سیکیورٹی کے روپ میں کہیں بھی داخل ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے, اور ان کے ہوٹر بھی لگے ہوئے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی بہت سارے پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی یہ لال ہوٹر لگے ہوتے ہیں, اچانک اوپر لگاتے ہیں اور گاڑی کو فروغ کرتے ہیں. اس کا کیا کریں؟ اچھا ارباب صاحب آپ نے سوال کیا اس پہ, آج سی ایم صاحب نے آلریڈی آرڈر دے دیا تھا. یہ میں پوائنٹ میں مس کر گیا تھا, آپ نے یاد دلا دیا کہ جو بھی پرائیویٹ گاڑی پہ کسی قسم کی کوئی پولیس جیسی آئیڈینٹیکل لائٹ یا اسے مشابہت کرتے والی جان بوجھ کے لوگ کرواتے ہیں یا سیکورٹی کمپنی بھی ہوگی, وہ ساری چیزیں بند کی جائیں گی. وہ گاڑیاں بھی کانفسکیٹ کی جائیں گی, وہ لائٹس بھی اتار دی جائیں گی. یہ پبلک کے لیے بڑا اوپن پیغام ہے کہ جی اب آپ نے کوئی اس طرح کی غلط حرکت نہ کر جس سے آپ کو تکلیف ہو, آپ کی اس پراپرٹی کو تکلیف ہو, جو گاڑی ہے آپ کی اس کو تکلیف ہو, یا آپ کا وہ نقصان ہو. برائے مہربانی بالکل ایک سمپل اس طریقے سے چلیں. آپ کوئی بھی اس طرح کا غلط قسم کی کوئی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسے اوائڈ کریں. آن لائن اسلحہ میں یہ بات یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. قانون اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور دیکھیں ہمارے ملک میں ایک فقدان ہے, قوانین ہوتے ہیں اس کی عمل درآمد ایٹ ٹائمز نہیں ہو پاتی. تو آج کی جو وزیر اعلیٰ سندھ کی میٹنگ تھی جس میں آئی جی صاحب بھی تھے, چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, وزراء بھی تھے, اس کے اندر اس بات کو زور دیا گیا کہ قوانین کو ہمارا کام ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو بتائیں, اور پھر انتظامیہ کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو کوئی بھی ویپن, اگر شرجیل صاحب کا ویپن ہے, اس ویپن کو میں اس طرح کیری نہیں کر سکتا, کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا, تو اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. اور اگین یہ جو 15 کی فیسلٹی آپ کو بتائی ہے, یہ سسٹم موجود ہے, لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان چیزوں کی نشاندہی کریں, انشاءاللہ حکومت اس کے اوپر کارروائی کرے گی اور مل کے اس چیز کو ہم قابو ویپنس کی کوئی چیز بتا دوں, قانون ہر چیز کو بڑا تشریح کی ہوئی ہے. لائک سپوز اگر آپ کا ویپن ہے اور آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی والا کیری کرنا ہے تو اس نے یا کو لائسنسی بنانا ہے یا ریٹینر بنانا ہے, وہ ایک لا ہے. اس کے علاوہ اگر تیسرا بندہ کسی جاننے والے کو آپ اس طرح نہیں کیری کر سکتے. آپ نے جو رینٹ کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی یہ بات کر میرے لیے انفارمیشن ہے یہ, لیکن 100% جو کرائے پہ دے رہا ہے وہ بھی جیل میں ہوگا, جو اس کے کرایہ دار ہیں وہ بھی جیل میں ہوں گے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں غلط کام ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, وہ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہو, کوئی بھی کر رہا ہے, تو سر وہی. پہلا سوال آپ سے کہ آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں لیکن بدھ سے جیل برو تحریک شروع ہو رہی ہے, تو امن و امان جو ہے نا آپ کا سارا بیچ میں رہ جائے گا. پہلا. دوسرا مکیش صاحب سے سوال کہ نمبر پلیٹیں تو ایشو ہو نہیں رہی, ایک ہفتے میں تو ہم کو جمع ہو جائے گا وہاں پہ امن و امان کی صورت پیدا ہو جائے گی, اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے نمبر پلیٹ والا دے دیں, پھر میں جیل برو تحریک پہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ بالکل اس وقت کوئی بھی گاڑی کو رجسٹر کرائے گا, نئی نمبر پلیٹ اسپاٹ پر رہی ہے. یہ پہلے تھا, مگر جب سے یہ ہم نے کمپیوٹرائز یہ جو سیکورٹی فیچر والی نمبر پلیٹ آئی ہے تو اٹس اپ ٹو ڈیٹ. تو سب کے لیے یہ انفارمیشن ہے, آپ گاڑی رجسٹر کرائیں, اسی وقت آپ کو حاضر میں نمبر پلیٹ ملے. اور جہاں تک وہ جیل برو تحریک کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ ہر اچھائی کی شروعات بڑوں سے کی جاتی ہے. نیک کام ہے, نیکی اور پوچھ. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر مس یوز ہو رہا ہے. وہ جو ٹائیگر فورس کے سربراہ ہیں ایوان صدر کے, عارف الوی صاحب, پہلے وہ گرفتاری دیں. اچھا ہے اگر جیل میں جائیں گے اس کے فوائد ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے معافی کا بھی, کسی کی سزا وہ معاف کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے بڑے بڑے دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی ہیں صدر عارف الوی نے. اگر یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صدر عارف الوی صاحب کل عدالت میں لے جائیں کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کی سزائیں عارف الوی نے
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ़ की हैं। तो मैं कहता हूँ आरिफ अलवी साहब, आपने बड़े दहशतगर्दों की सज़ाएं माफ़ की हैं, आप जेल भरो तहरीक में सबसे पहले आगे जाएं, जेल में कुछ दिन रहें, वहाँ आपको कोई मिस्कीन नजर आएंगे, उनको वहाँ सज़ाएं माफ़ करते रहें, तो पहले इनका नंबर बनता है। दूसरा, वो नशेई जो बैठा हुआ है ज़मान पार्क में छुप के, आज सुना है कि वो फिर उसको अदालत ने भी उसको बड़ी टाइमिंग की है, तो हमने भी कोर्टें देखी है, लेकिन ऐसी अयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊँगा कल आऊँगा अदालत में, कल नहीं आऊँगा परसों आऊँगा, 1 बजे नहीं आऊँगा, अभी मैं क्योंकि रात को लेट तक कुछ करता हूँ तो मैं देर से आऊँगा, 4-5 बजे कोर्ट मेरे लिए खोली जाए, उसमें भी पहले मेरे पास जो है पुलिस की वो वाली गाड़ी आए, और फिर वो जैमर्स की 6 गाड़ियाँ आए, फिर वो फलानी फोर्स मुझे प्रोटोकॉल के लिए आए। ये पाकिस्तान में क्या, दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इस नशई को और उसके पूरे टीम को दी गई। खैर एनीवेज, जेल भरो तहरीक की जो सवाल किया आपने इक़्तिदार साहब, तो पहले आरिफ अलवी साहब अच्छे एक टाइगर फोर्स के जवान का सबूत दें, पहले इनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी दें, फिर वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें, बाकी देखा जाएगी। अप्रैल में आरिफ अलवी ने अदालती ये कह दिया है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराएं, उस हवाले से बता दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल है जो आप दोनों जवाब दे दें, हम गरीब लोग, इनके पास ना असला है ना बड़ी गाड़ियाँ हैं, AFR वाली गाड़ियाँ भी आपके वजीर उनके लोग ही चलाते हैं, और असेंबली के बाहर भी खड़ी होती हैं, अंदर भी खड़ी होती हैं, असले वाले बाहर लोग खड़े होते हैं, आपके मिनिस्टर भी शौकीन हैं, पूरे डिफेंस में रात को असला लेकर घूमते रहते हैं। तो पहले शुरुआत तो अपने घर से करें, कल परसों असेंबली में मुकेश चावला शुरुआत करे, जो AFR वाली गाड़ियां हैं उनको जब्त करे, एक मैसेज है। देखिए जी, ये बात क्लियर कर दी है ना कि आज की तारीख नोट कर दें, आज तारीख क्या है, 20 फरवरी 20 है ना, 27 तारीख को, मैं पता अभी मीडिया ने करना क्या है इस मेरे जुमले को, वो 27 का वो शॉट चलाना है 28 को, 28 को, हाँ 28 फरवरी से जो गाड़ी नजर आए वो आपने करना क्या है, आप मीडिया वाले जब खबर चलाना उसकी गाड़ी की तस्वीर भी चला देना और कौन से इलाके में उसकी लोकेशन भी भेज देना। हो सकता है हम आपको कोई पुलिस के वो ऐप भी भेज दें, ये भी एक अच्छा आइडिया आपको सवाल से संजय साहब, हम आपको एक ऐप भेज दें कि जी अगर आप देख रहे, कोई नंबर भेज दें व्हाट्सएप का कि अगर आप देख रहे हो कि ये गाड़ी फलानी जगह पे खड़ी है अनरजिस्टर्ड, या इधर वेपन वाले लोग जो है वो खुलेआम वेपन लेके बैठे हैं, आप तस्वीर निकालें, लोकेशन भेजें, और वो मैं आज ही IG साहब से बात करके 3-4 नंबर जो है हम कल वो तशहीर भी कर देते हैं आपके पास, ताकि आप पुलिस की मदद भी करें और आप वो मतलब इसमें आपको नजर आएगा कि संजीद कितनी है। जिस तरह आपने बात की कि मिनिस्टर होगा या कोई भी बादशाह शख्स है, अगर वो वेपन्स ओपन सरेआम लेकर चल रहा है और अगर वो ओपनली ये सारी चीज़ें कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल बी बिहाइंड द बार्स। कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा है, ये नहीं कि जी कोई किसी के लिए कोई खास कानून, किसी के लिए खास कानून। जहाँ तक जैसे आपने एक बात की, सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस की है, अच्छा अब उन्होंने अगर की है तो फिर इसमें एक और गैर आईनी काम किया है, और मेरे ख्याल से वो 2-4 दफ़ा इमरान खान से मिलने गए हैं ज़मान पार्क, तो वो इमरान खान वाली आदतें ना इस्तेमाल करें, इमरान खान की कोई भी चीज़ झूठी ना खाएं ना पिएं कि आपके दिमागी भी तवाज़ुन उस जैसा ही हो जाए। तो ये मेरा मशवरा होगा डॉक्टर डेंटल साहब को। जी 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 सर। हाँ कराची के शहरी की बात करी तो खुद का धमाका पेशावर में हुआ था, उसमें तो वो आपकी पुलिस की वर्दी पहना हुआ था, तो ये कोई हल तो नहीं होगा क्योंकि 30-40 किलो वो बारूद लेके गया, 100 से ज्यादा अफराद उसमें शहीद हुए, तो ये हल समझते हैं आप किसी भी वर्दी पे इस पे फोकस? देखिए किसी चीज को भी करने के लिए आपने पहले माहौल को साफ करना पड़ता है ना, पता तो चले कि जो रोड पे असला लेकर चल रहा है वो बंदा टेररिस्ट है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने आपको क्या कहा कि कोई किसी फोर्स का आदमी अगर वो भी प्राइवेट कपड़ों में वेपन ओपन लेकर बैठा है तो इट इज नॉट अलाउड कि किसी फोर्स का आदमी भी बगैर यूनिफॉर्म के वेपन लेकर चल रहा है तो पुलिस कंसीडर करेगी भाई कोई दहशतगर्द है। तो यही चीज जो आप कह रहे हैं उसका दूसरा काउंटर यही है। जी हफीज साहब, कराची के शहरी दाखिल पे रैन को करम पर थे आप, तो एडिशनल आईडी कराची के मुताबिक जब तक दहशतगर्दों को रैन को करम पहले गेट चेक पोस्ट से लेकर जब तक पहुंचने तक कहीं एहलकार तैनात नहीं थे, ना ही स्नाइपर, तो इसे एडिशनल आईडी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, उनको भी किसी तरह का? देखिए तमाम पहलुओं को देखा गया है। मैं समझता हूँ पुलिस ने
प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया। और मैं खुसूसी तौर पर जो मुझे चीज़ अच्छी महसूस हुई, दिल को अच्छी महसूस, एक बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबकी वही फीलिंग होगी कि आपने देखा होगा इस ऑपरेशन में पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो हथियार लेकर फील्ड में लड़ रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे फोर्सेस लड़ रही हैं, जहाँ पे आपके जवान लड़ रहे हैं, वहाँ उनके सीनियर भी हथियार लेकर खुद मैदान में लड़े हुए थे। ये पुलिस की एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक पुलिस ने मैसेज दिया है। लेकिन ठीक है, जहाँ पर अगर कोई कोताही है तो डेफिनेटली उसको देखा जाएगा कि कहाँ पे लैप्स हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें सर कुछ सामने नहीं। थैंक यू जी। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कैसे पहुंचे। नहीं, वो बता दो कैसे पहुंचे। एक मिनट, सवाल हो रहा है जौहर का मसला सुना। अब मसला मैं आपको बताऊं कि आप ये देखो कि जब ये दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, माजी में जितने भी ऑपरेशन किए गए, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, ये सारे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। वो कौन सी हुकूमत थी जो इन्होंने इनको छोड़ दिया? ये सोचने की जरूरत है कौन से हुकूमत थी जिसमें इन लोगों को रियायत दी गई, इन लोगों को छोड़ा गया। बन्नू जेल ब्रेक हुई, किसकी हुकूमत थी? कि वीगोज में ढोल और ढोल शरनाइयों के साथ दहशतगर्द आए, बन्नू जेल ब्रेक की, अपने दहशतगर्द साथ छुड़वा के चले गए। किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। एपीएस वाकया हुआ, किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। तो आप, और फिर पीटीआई की जब असली हुकूमत आई, जब उनके पास वफा की हुकूमत आई, तो इन दहशतगर्दों को आम माफी सदर आरिफ अलवी ने दी है। मैं कह रहा हूं अगर मैं सियासी बयान दे रहा हूं तो मुझे चैलेंज करो, मुझे कोर्ट में लेके जाओ। हो सकता है मैं कोर्ट में माफी मांगू, हो सकता है मैं साबित करूं कि हाँ आपने उन दहशतगर्दों को छोड़ा, सदर आरिफ अलवी ने छोड़ा, वफा की हुकूमत इमरान खान ने उन दहशतगर्दों को छोड़ा। जब उन दहशतगर्दों को आपकी रियासत, आपकी फौज उनसे लड़ रही है, आपकी एफसी उनसे लड़ रही है, आपकी रेंजर्स उनसे लड़ रही है, आपकी पुलिस उनसे लड़ रही है, और आप अपने एक आइडियोलॉजी आपकी है कि नहीं दहशतगर्दों से बातचीत होनी चाहिए, उनके दफातर खोले जाएं, उनके मदरसों को स्पेशल केपी गवर्नमेंट फंडिंग दे। एक मुल्क की पार्टी, एक हुकूमत उनको मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ सामने आएंगे, इस तरह के वाकयात होंगे। अगर वो जो जूते आपने मारे थे वो कंटिन्यू रखते तो अभी नौबत नहीं आती। बीच में तो नहीं हुई ना, अब हो गई। यस, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई। आरिफ अलवी इस वक्त जो है वो सुप्रीम कमांडर भी है हमारे फोर्सेस का। उसका बेटा खुद सोशल मीडिया पे उसने इतने गिरे हुए घटिया ट्वीट्स किए हैं हमारे मुल्की इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ। तो ये क्या इस शख्स को यहाँ होना चाहिए? मैं कहता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ पहली गिरफ्तारी आरिफ अलवी को देनी चाहिए। थोड़ी हिम्मत करे और जाके अपना काम करे। थैंक यू।